Hi everyone, welcome to MR Learning Circle. I hope you all are doing well. In the previous video, we discussed about the provisions and chapters of FSS Act. Today, we will learn about the sections mentioned in the FSS Act. So let's start. There are 101 sections present in the FSS Act. Now, Section 1 deals with the short title extent and commencement. Section 2 deals with declaration as to expendency of control by the union. The definitions are given in section 3. The section 4 is related to the establishment of Food Safety and Standard Authority of India. The sections which are having an asterisk or a star mark, I will discuss this in detail in the coming videos. Okay. Now, Section 5 deals with the composition of Food Authority, qualification for appointment of its chairperson, and the other members. The sections which I'm taking or marking, I'll tell you the important ones. You don't have to learn all the 101 sections. Everyone knows not every section is important. But since we have time, let's just go through every section so that it's helpful. Learning is never going to harm you. So, we will discuss this section 5 also in detail. Now, section 6. Section 6 deals with the selection committee for the selection of chairperson, member of the food authority. मतलब selection committee में कौन कौन लोग होते हैं for the selection of chairperson. ठीक है. Section 7 deals with the term of office, salary, allowances and other conditions of the service of a chairperson and members of food authority. कि क्या term रहेगा, कितने दिन के लिए रहेंगे, salary क्या मिलेगी, allowances क्या क्या मिलेंगे, ये सब section 7 में बताया है. What is in section 8? Removal of chairperson and members of food authority. This section will also be discussed in detail. Section 9 deals with the officer and other employees of food authority. Food authority से क्या मतलब है? FSSAI. FSSAI में और कौन कौन से officers और employees रहते हैं other than the chairperson and the member. ठीक है. Now section 10, it is the function of chief executive officer. Chief executive officer का क्या function है वो section 10 में चलेगा. Section 11 में सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. सेक्शन 12 में फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. साइंटिफिक पैनल इन सेक्शन 13, साइंटिफिक कमेटी इन सेक्शन 14, ये दोनों भी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट सेक्शन 16 डील्स विद द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी. फूड अथॉरिटीज की क्या ड्यूटीज है, उनको क्या फंक्शन दिया है, वो सब भी डिटेल में पढ़ेंगे. सेक्शन 17 में क्या है, प्रोसीडिंग्स ऑफ फूड अथॉरिटी. सेक्शन 18, general principle to be followed in the administration of the act. Which act? FSS Act. Okay. Section 19 is the use of food additive or processing aid. कि कौन कौन से food additives होते हैं और कौन से processing aids हैं जिनको हम अपने food में allow कर सकते हैं, use कर सकते हैं. Section 20, contaminants, naturally occurring toxic substances, heavy metals, etc. ये किस में आते हैं? सेक्शन 20 में. ठीक है. Now section 21 deals with pesticides, veterinary drug residues, antibiotic residues and microbial counts. ये pesticides इसमें ये बताएगा कि कितना परसेंटेज आपका पेस्टिसाइड्स हार्मफुल नहीं है और फिर कितना क्या रेंज है पेस्टिसाइड की या वेटरनरी ड्रग रेसिड्यूज की कि वो हार्मफुल नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए. ठीक. सेक्शन 22, it deals with genetically modified foods
ऑर्गेनिक फूड्स डेफिनेशन क्या होती है ऑर्गेनिक फूड्स की, फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी फूड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको किसमें बताया है, सेक्शन 22 में। इसके आगे भी स्टार लगा लेते हैं। सेक्शन 23 में क्या है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड। पैकेजिंग एंड लेबलिंग का तो पूरा रेगुलेशन है, जब हम लोग रेगुलेशंस पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ही। अब सेक्शन 24 में क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोहिबिशन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्लियर। सेक्शन 25 में इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का चैप्टर क्या है, कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, section number 26. It is the responsibility of food business operators. 27 में क्या है, liability of manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers. ठीक। 28 में क्या है, food recall procedure. अब क्वेश्चन आ गया, food recall procedure is mentioned in which section of FSS Act. तो चार ऑप्शन दे दिए, 27, 28, 29, 30. तो यू हैव टू सेलेक्ट सिंपल। अगर जिसने पढ़ा हुआ है फूड रिकॉल प्रोसीजर सेक्शन 28 में तो उसका सही हो गया, 4 नंबर मिल गए। अब सेक्शन 29 में क्या है, अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एक्ट। ठीक, कौन कौन से अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल है एक्ट को एनफोर्स कराने के लिए। सेक्शन 30 इज कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट। ओके। सेक्शन 31 लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फूड बिजनेस, इसका भी पूरा रेगुलेशन है, रेगुलेशन में ही पढ़ेंगे। इम्प्रूवमेंट नोटिस 32 में आ गया, 33 में प्रोहिबिशन ऑर्डर, 34 में इमरजेंसी प्रोहिबिशन नोटिस एंड ऑर्डर्स, 35 में नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक, फूड पॉइजनिंग अब जो तो खुद ही समझ में आ जाता है ना, जैसे कि क्या चीज है फूड पॉइजनिंग, मेन टर्म्स है जो रोज की लाइफ में यूज हो रहे हैं, उन सारे सेक्शंस को हम थोड़ा देख लेंगे और उनका नंबर याद रखेंगे कि हाँ फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड किसमें था, नोटिफिकेशन आना है तो किसमें आएगा, सेक्शन 35 में। ठीक है। अब सेक्शन 36 इट डील्स विद डेजिग्नेटेड ऑफिसर। 37 फूड सेफ्टी ऑफिसर। अभी CFSO वाले देख लो, सेक्शन 37 में आपका है, आप ही के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 38 में दिया है पावर्स ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। 39 में लायबिलिटी ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर इन सर्टेन केस, क्या लायबिलिटी है उनकी, हाँ फूड सेफ्टी ऑफिसर कुछ ऐसे सर्टेन केस रहेंगे जिसमें, उसको भी स्टार कर ले रहे हैं, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। 40 में परचेजर मे हैव फूड एनालाइज्ड। परचेजर मतलब जिसने खरीदा है फूड, उसको वो कैसे एनालाइज करवा सकता है, इसके बारे में दिया है, करवा सकता है कि नहीं करवा सकता ये दिया है, और करवा सकता है तो कैसे करवा सकता है। ठीक। सेक्शन 41 में क्या है, पावर ऑफ सर्च, सीजर, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। 42 में प्रोसीजर ऑफ लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन, 43 में रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्रीडेशन ऑफ लैबोरेटरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड रेफरल फूड लैबोरेटरीज, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन नंबर 43। सेक्शन 44 में क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी फॉर फूड सेफ्टी ऑडिट। फूड सेफ्टी ऑडिट के लिए जो भी आपका एजेंसी लेंगे थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए या वैसे भी, तो उसको हम कौन से सेक्शन के थ्रू और या क्या उसमें उसकी क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी या क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सब चीजें सेक्शन 44 में दी। ठीक। अब सेक्शन 45 में क्या है, फूड एनालिस्ट। फूड एनालिस्ट की भी अभी पोस्ट आई थी 2-3 दिन पहले, मेरे ख्याल से 4 नवंबर को फूड एनालिस्ट का फाइनल रिजल्ट भी आया। तो ये फूड एनालिस्ट क्या होते हैं, क्या करते हैं, इनका क्या होता है, ये सब दिया हुआ है सेक्शन 45 में, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 46 फंक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट। 47 में सैम्पलिंग एंड एनालिसिस, किसका सैम्पलिंग एंड एनालिसिस, फूड का सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। 48 में क्या दिया हुआ है, जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू द ऑफेंसेस। और 49 में क्या है, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेनाल्टी। क्लियर। 50 में क्या है, पेनाल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ नेचर एंड सब्सटेंसेस और क्वालिटी डिमांडेड। ठीक, इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में फ्यूचर में। अब सेक्शन 51 में
सेक्शन 51 में क्या है, पेनाल्टी है सबस्टैंडर्ड फूड के लिए, पेनाल्टी के 52 में क्या है, मिसब्रांडेड फूड के लिए उसकी पेनाल्टी है। और सेक्शन 53 में क्या है, पेनाल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाया तो ये है कि क्या कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया कि आपको प्रोटीन भी मिल रहा है और आप एकदम जैसे ही आपने सिप लिया किसी भी प्रोटीन ड्रिंक का तो आप बस 10 मिनट बाद आप एकदम एक्टिव हो गए, पर तो दैट एडवर्टाइजमेंट इज मिसलीडिंग, पर ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। 54 में क्या है, पेनाल्टी ऑफ फूड कंटेनिंग एक्सट्रानिशियस मैटर। 55 में क्या है, पेनाल्टी फॉर फेलियर ऑफ टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन नंबर 56। 56 में क्या पेनाल्टी है, इसमें भी अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड में क्या पेनाल्टी लगेगी, सही साफ सुथरी जगह पे आप फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं या जो आप गाइडलाइंस में दिया हुआ है उस हिसाब से फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं तो क्या पेनाल्टी लगेगी, ये है। 57 में क्या है, पेनाल्टी फॉर पोजेसिंग एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट के लिए एक अलग सा वीडियो बनेगा जब आगे के लेक्चर्स में फूड एडल्ट्रेंट पूरा है तो उसके लिए एक अलग से बनेगा, एडल्ट्रेंट्स बहुत हार्मफुल होते हैं। 58 के लिए पेनाल्टी फॉर 58 में क्या है, पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनाल्टी इज प्रोवाइडेड। 59 में पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड, अभी तक पेनाल्टी लग रही थी अब पनिशमेंट आ गया 59 से। 60 में क्या है, पनिशमेंट फॉर इंटरफेयरिंग विद सीज्ड आइटम्स। 61 में क्या है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन, आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है इसलिए आपको पनिशमेंट मिल रही है। और 62 में क्या है, पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग और इम्पर्सोनेटिंग अ फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, कि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर आपके यहाँ चेक करने आए, रेड पड़ी है आपके और आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, आप जाने नहीं दे रहे हो अपने फैक्ट्री के अंदर या अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, तो उसके लिए जो भी पनिशमेंट है वो सेक्शन नंबर 62 में दी हुई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी मार्क कर लीजिए। 63 में क्या है, पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस विदाउट लाइसेंस। ओके, 64 में क्या है, पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। 65 में क्या है, कॉम्पनसेशन इन केस इंजरी ऑफ डेथ ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, कि यहाँ किसी फूड आइटम के खाने की वजह से जो मैन्युफैक्चरर या किसी और की गलती की वजह से गलत फूड मिला है तो उसकी वजह से कंज्यूमर की डेथ हो जा रही है तो आप क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा कंज्यूमर को जिसकी डेथ हुई है या उसकी फैमिली को। ओके, ये है 65 में, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। 66 में क्या है, ऑफेंसेस बाय द कंपनी। 67 में पेनल्टी फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ provision of this act in case of import of articles of the food to be in addition to the penalties provided under any act. Okay, 68 मार्क कर लो, important है, adjudication। 69 में क्या है, power to compound offenses। section 70 में क्या है, establishment of food safety appellate tribunal, जो भी cases हैं वो tribunals में चलेंगे तो उसका establishment कैसे हुआ। Now 71 deals with the procedure and powers of the tribunal. 72 is the civil court not to have jurisdiction. 73 में दिया है कि power of the court to try cases summarily. छोटे में फटाफट केसेस को सुनो कि प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करो। 74 में क्या है, स्पेशल कोर्ट्स एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 75 में क्या है, ट्रांसफर ऑफ पावर टू ट्रांसफर केसेस टू रेगुलर कोर्ट। ठीक है, इसमें एक भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेक्शन नहीं है। सेक्शन 76 क्या है, अपील है। 77 है टाइम लिमिट फॉर प्रोसिक्यूशन। 78 क्या है, पावर ऑफ द कोर्ट टू इम्प्लीड मैन्युफैक्चरर। 79 में क्या है, मैजिस्ट्रेट्स पावर टू इम्पोज एनहांस पनिशमेंट। ठीक है, मैजिस्ट्रेट को जो पावर मिली है कि हाँ अगर किसी को 1 साल की सजा दी हुई है इस एक्ट में तो ये मैजिस्ट्रेट की पावर है कि वो उसकी पनिशमेंट को बढ़ा के 1.5 साल या 2 साल कर दे। ओके, ये चीज किस में दी है, सेक्शन 79 में, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। सेक्शन 80 में क्या है, डिफेंसेस विच मे और मे नॉट बी अलाउड इन द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। क्या डिफेंस आप ला सकते हो, क्या डिफेंस आप नहीं ला सकते, ये सब उसका डिटेल सब दिया है सेक्शन 80 में। 81 में क्या है, बजट ऑफ फूड अथॉरिटी। हाँ, पैसे कहाँ से आ रहे हैं एफएसएसएआई के बाद, फाइनेंसेस कौन देख रहा है, ये 82 में है। 83 में अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ फूड अथॉरिटी। 84 में क्या है,
एनुअल रिपोर्ट ऑफ फूड अथॉरिटी, 84 में क्या है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ फूड अथॉरिटी। 85 में क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन टू फूड अथॉरिटी and obtain reports and returns. Section 85 is also important. Mark it. Section 86. It is the power of central government to give direction to state government. Okay. 87 में क्या है, members, officers of food authority and commissioner of food safety to be public servant. Okay. 88 में क्या है, 88 deals with the protection of एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कि हाँ किसी ने किसी मैन्युफैक्चरर को पकड़ा पर उसका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो उसमें आप जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व है उसका प्रोटेक्शन, क्योंकि उसने तो गुड फेथ में ही एक्शन लिया है ना। सेक्शन 89, इट इज ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट over all other food related laws. Section 90 deals with the transfer of existing employees of central government agencies governing various food related act or order to the food authority. Now section 91 deals with the power of central government to make rules. 92 is the power of food authority to make regulation. Rules कौन बनाएगा, central government. Regulations कौन बना रहा है, food authority. ठीक है। Section 93 deals with the laying of rules and regulation before parliament. इन्होंने rules बनाए, इन्होंने regulations बनाए, और 93 में क्या है, parliament के सामने आपने पेश किया। 94 is the power of state government to make rules, and section 95 deals with reward by central government. इनमें से एक भी article important नहीं है। 96 में है recovery of penalty. 97 deals with repeal and savings, ये भी आप याद कर सकते हो। 98 में क्या है, transitory provisions of the food standards. 99 deals with milk and milk products order 1992 shall be deemed to be the regulation made under the act. ठीक है, nothing important here. Now section 100 deals with the amendment of infant milk substitute, feeding bottles and infant food act 1992, और 101 सेक्शन में पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। ठीक है, ये थे हो गए सारे सेक्शंस, और जिनके आगे स्टार मार्क है ना उन पे पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में या आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हाँ कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए चेयरमैन की, मेंबर्स की, पेनाल्टीज क्या लगती है, फूड एनालिस्ट क्या है, फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या है, उसकी पावर्स क्या है, और जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो ये तो सेक्शन हो गए ना, सब सेक्शन पता चल गए, और ये भी मार्क कर दिया कि कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। ठीक, I hope this video was beneficial. If you have liked this video or you have learned something from this video, please like and share. And if you're new to the channel, please subscribe to the channel. Thanks for watching. Bye.